تو شروع میں ہی انسان اس بات کا خیال کر لے کہ بھائی ایسے سے محبت کرو جس کے چھوٹنے کا امکان نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ ایسی محبت ہو کہ جب وہ ملے تو اس کے رازوں سے پردہ اٹھتا رہے, اس کے جمال سے پردہ اٹھتا رہے, اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونا شروع ہو جائے. ایسے محبوب سے اگر آپ کو محبت ہو گئی جس کے نہ چھوٹنے کا غم, اور جس کے کمال, جس کا جمال اتنا زیادہ ہو, لامحدود ہو, کہ آپ اس میں غور کرتے رہیں, اور آپ اس میں غور کرتے 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 اس کے راز آپ کے سامنے فاش ہوتے رہے, رازوں سے پردہ اٹھتا رہے, اور آپ اسی کی محبت میں دن بدن ترقی کرتے 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 ایک وقت اس کے پاس پہنچ جائیں. تو ایسے محبوب سے محبت پائیدار بھی ہوگی اور آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گی. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے, صرف اللہ کی ذات ہے. تو ہمارے اندر بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ محبت کرنے سے پہلے یہ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ اس سے, دیکھو اگر کوئی ہیروئن سے محبت کر لے, چرس اور ہیروئن جو ہوتی ہے نا, تو آپ کہو گے نا تم بے وقوف ہو, تم نے کس چیز سے محبت کی ہے, کہیں گے نا اس کو. اگر وہ اس موقع پر کہے کہ دل تو پاگل ہوتا ہے جس پہ بھی آ جائے, وہ یہ دلائل, آج کل یہ دلائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ مائک کو کیا ہو گیا یار, اچھا بھلا چل رہا تھا. آج کل جو مارکیٹ میں دلائل چل رہے ہیں نا, بھائی دل تو بھائی جس سے چاہے محبت کر لے, دل پہ کس کا قابو ہے. یہ ڈائیلاگ ہیں میڈیا کے ذریعے آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. دل پہ انسان کا بڑا قابو ہوتا ہے, بے قابو دل ہیروئنچیوں کا ہوتا ہے, شرابیوں کا, کہ وہ ان کو سوچا نہیں انہوں نے اور ہیروئن چرس سے محبت کرنا شروع کر دی, بیڑا غرق کر لیا اپنا. دیکھو تبلیغ میں جب وقت لگاتے ہیں نا, تبلیغ والے بار بار ایک بات کہتے ہیں جب گشت کے لیے نکلتے ہیں, کہ جیسے ہی کوئی خوبصورت عمارت نظر آئے, کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے, انسان کا دل چاہتا ہے نا کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا, تو فوراً کہتے ہیں فوراً سوچو کہ بھائی مٹی کی دو قسمیں, ایک کھڑی مٹی ایک پڑی مٹی. یہ وہی مٹی ہے جو کھڑی کر دی ہے, ایک دن آئے گا یہ دوبارہ ختم. تو بار بار گشت میں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم تو نکلے ہو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے. تم اگر اس دنیا سے متاثر ہو گئے, میرا یہ بنگلہ, میری یہ گاڑی, وہ فلاں کی گاڑی, میں امریکہ جماعت گئی تھی, وہاں تو لوگوں کی, دبئی جماعت جائے وہاں تو سارا دن گاڑیاں, غریب آدمی دبئی چلا جائے نا, وہ سارا دن گاڑیاں ہی دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے, بھائی یہ کیا ہے, یہ کیسی کیسی گاڑیاں لے کے. وہاں غریب سے غریب کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں کہ جہاں مالداروں کے پاس نہیں ہوتی. تو وہ فوراً بتاتے ہیں بھائی مٹی کی دو قسمیں ہیں, مٹی سے کوئی محبت نہیں کرتا, ایک کھڑی مٹی اور ایک مٹی ہوتی ہے گارے لپائی پتائی کر کے اس کو ذرا ڈیزائن بنا کے کھڑا کر دیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ختم ہوگی جو بنانے والا, اس میں رہنے والا تھوڑے دنوں میں کہاں جانے والا ہے, مٹی میں. تو آپ بتاؤ اس بلڈنگ سے دل لگانے والا, جس بلڈنگ نے بھی فنا ہونا ہے اور اس بلڈنگ میں رہنے والے کا بھی 4 دن کے بعد جنازہ اٹھنے والا ہے, اس ایسے بے وفا سے محبت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج یہی کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ کمال کا اپنے گھر, ذاتی گھر, میری دیوار, میرا گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرا پلاٹ. تو پاگل ہو بھائی, کیا کرنا ہے؟ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آپ بنائیں, پلاٹ بھی خریدیں, آپ گھر بھی بنائیں. یہ محبت کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. اور اگر اس سے محبت کرو گے, خدا کی قسم ایسی سزا ملے گی, اللہ دل کا سکون چھین لے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان ولن یملأ فاها الا التراب. کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا انسان, دیکھو کیسے نبی نے مثال بالکل سب سے آخر کی دی ہے, تاکہ اس سے کم درجے کے جو دنیا پرست ہیں نا ان کو سمجھ میں بات آ جائے. بھائی نبی اگر مثال دیتے کہ جس کے دل میں گاڑی کی محبت ہے تو یہ محبت ختم نہیں ہوگی, جب ایک گاڑی ملے گی اس کا دل چاہے گا کاش اس جیسی ایک اور ہوتی. تو آپ کہتے ہیں اصل میں گاڑی تو چھوٹی چیز ہے نا, وہ بنگلے کی میں تو بنگلے کی محبت, میرا تو بحریہ ٹاؤن خریدنے کا پروگرام ہے. تو نبی نے مثال ایسی دی ہے کہ اس سے آگے کوئی مثال ممکن ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے, تم چاہتے ہو یہ مل جائے وہ مل جائے, اور اللہ نے تمہاری چاہت کے مطابق سونے کا جنگل دے دیا تم کو, تو پھر انسان فوراً سوچتا ہے یار اگر سونے کا جنگل مل گیا نا, پھر تو ہمیں کب کوئی خواہش دل میں نہیں رہے گی. سونے کا جنگل مل جائے, بتاؤ. ابھی تو غریب سوچ رہا ہے یار جنگل کی کیا ضرورت ہے, اللہ سونے کا ایک تھیلا ہی دے دے, ایک شاپر میں تھوڑا سا چند گلے ڈال کے دے دے تو بس میرے لیے یہ بھی کافی ہیں. ابھی تو یہ سوچ رہے ہو نا بھائی ایک ٹکیا مل جائے, بس مجھے کوئی نہ رکشا چلانے کی ضرورت رہے گی نہ اوبر چلانے کی ضرورت رہے گی, ایک تھوڑی سی اینٹ میٹ مل جائے سونے کی. تو نبی نے فرمایا کہ تم ایک اینٹ کی بات کرتے ہو, تم ایک بلاک کی بات کرتے ہو. نبی نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نمائندہ ہوں, میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے نا وہ سونے سے بھر دیا جائے,
और तुम्हें गिफ्ट कर दिया जाए, तो आप बताओ सारी जिंदगी खाने के लिए कितना हो गया ना इसके पास। नबी ने फरमाया कभी भी सुकून में नहीं आएगा। अहब्बा, फौरन इसके दिल में एक और ख्वाहिश जन्म लेगी। अभी तो ये ख्वाहिश है एक दो ईंटें मिल जाएं, लेकिन इसकी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी करके 2 पहाड़ों को भर के दे दिया इसको। फरमाया फौरन इसके दिल में ख्वाहिश होगी इस एक के 2 कैसे बनाऊं मैं। देखो नबी की हदीस पर अगर यकीन नहीं आता ना, तो जिन लोगों को सोने के जंगल मिले हुए उनके हालात देख लो जाके, वो चैन से बैठे हुए हैं। अरे अपने सियासतदानों को देख लो, कोई $5 अरब पी गया, कोई $2 अरब पी गया, तो क्या $5 अरब पीने के बाद उन्होंने कहा $5 अरब का तस्वुर कर सकते हो? है भाई, $5 अरब रुपए का तस्वुर है कितने होते हैं? मेरा ख्याल है आप लोग को नहीं पता 5 अरब होते कितने। असल में इतने पैसे कभी देखे ही नहीं ना, तो तस्वुर में भी नहीं आ रहे होते वो। 5 अरब का मतलब 1 अरब 100 करोड़, 1 करोड़ का मतलब 100 लाख। ओ भाई, वो तो अगर वो 5-5 हजार के नोट चाय में डबो के खाना शुरू कर देना, वो नोट खत्म नहीं होंगे, इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इतना पैसा, नोट से चीजें नहीं, डायरेक्ट नोट खाना शुरू कर दें। लेकिन क्या ये सियासतदान चैन से बैठते हैं? क्या ये फिर लोगों की जमीनों पे कब्जा नहीं करते? क्या फिर ये रिश्वतें देके और मुख्तलिफ हरबों से ये भी वो मिल खरीद लो, वो मिल खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो? ये तो सुबह शाम हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भाई दौलत आने से सुकून नहीं मिलता, हवस खत्म नहीं होती है। ये तो एक हकीकत है और नबी ने भी इसी हकीकत को बयान किया। फिर ये हवस खत्म कैसे होगी? सवाल पैदा होता है। आपने फरमाया वलन यमला अफाहु इल्ला तुराब, कब्र की मिट्टी खत्म कर देगी। फरमाया इसके मुंह को कब्र की मिट्टी भरेगी, इसका मुंह जायदादों से नहीं भर सकता, दौलत और पैसे से बोलो ना नहीं भर सकता। ये सोच ही गलत है, ये अंग्रेज की सोच है, गैर मुस्लिमों की सोच है। पैसा पैसा पैसा। वो गैर मुस्लिम गोरा था, मुसलमान हुआ, लेकिन वो बेचारे के अंदर जरासीम तो वही वाले थे ना। वो मुसलमान तो हो गया, अल्लाह करे अब तक तो बहुत अच्छा बन चुका वो, लेकिन नया नया हुआ तो वो एक चीज जबान से बोलता था कि बार बार पैसे का जिक्र बहुत करता था कि भाई मैं पैसे के लिए काम करता हूं, मैं पैसे के लिए काम करता हूं, मैं पैसे। मैंने कहा भाई ये मुसलमान हुआ है, लेकिन अभी इसमें जो जरासीम है ना वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए, क्योंकि सारी जिंदगी पैसे में गुजरी, पैसे में गुजरी। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग पे आ जाएगा इंशाल्लाह। जब देखेगा ना मुसलमानों को सखावत करते हुए, ओ भाई ऐसे, मैंने तो ऐसे ऐसे सखी देखे, मैं खोपड़ी हैरान हो जाती है। अच्छे लोग भी है, अच्छे ताजिर हैं, ऐसी सखावत गरीबों को खिला रहे हैं। मदरसों भी अभी अब जामियत रशीद में एक हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने दावत की, पता चला अंदरून सिंध कितने मदरसे चल रहे हैं, गरीब हारियों पे मेहनत कर रहे हैं। हजारों हिंदुओं को मुसलमान किया जो बिल्कुल पस्त, और उन पर फिर अपना पैसा लगा के उनके लिए मदरसे बनाए, हॉस्टल बनाए। कोई बड़ी से बड़ी एनजीओ ऐसा नहीं कर सकती जो एक एक फर्द कर रहा है। तो मैंने कहा जब ये गोरा रहेगा ना थोड़ा सा इन लोगों में, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेटिंग इंशाल्लाह सही हो जाएगी। तो हम हजरत का बयान सुना करते थे, हजरत के बयान में पैसे की नफी, हालांकि हजरत के पास खुद बहुत पैसा था, तो लोग कहते थे इतना पैसा है और हर वक्त पैसे की नफी करते हैं। तो हजरत फरमाते थे कि देखो किश्ती, पानी किश्ती के नीचे रहेगा ना तो फायदेमंद है, किश्ती पानी पे चलती रहेगी, और अगर पानी किश्ती के अंदर आ गया तो किश्ती को तबाह कर देगा। फरमाए जब तक ये पैसा दिल के बाहर हो तो ये बहुत फायदेमंद चीज है, इससे बड़े काम हो जाते हैं, इज्जत भी होती है, गरीबों पे खर्च भी करता है, बीवी बच्चों को अच्छा खिला देता है, दीन के लिए बहुत कुछ कर लेता है, बड़ी सर उठा के जी लेता है इंसान। लेकिन इससे मोहब्बत करने की चीज नहीं है। जहां ये दिल के अंदर आया है डुबो देता है इंसान। अब दिल के अंदर आया है या नहीं आया, इसकी अलामत क्या है? क्या ख्याल है भाई? एक तरफ कह रहे हैं तारीफें भी, पैसा बड़ा, जो अच्छी चीज होती है मोहब्बत तो होती है ना भाई। अरे क्या हो गया? आपको खुद ही सवाल होना चाहिए ना दिमाग में, जब इतना अच्छा है तो मोहब्बत क्यों नहीं करें उससे? भाई मोहब्बत इतनी करें जितना अच्छा है। हम बहुत ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। है मुसाफिर खाना, है छूटने वाला। तो देखो जब कोई सफर में आपके साथ होता है तो अच्छा रफीक मिल जाए, आपको हुक्म है उससे मोहब्बत करो ताकि तमीज से सफर गुजर जाए। आप उसी से फड्डा करके बैठ गए। आप कराची से पेशावर बस में जा रहे हो, कोई बड़ा तगड़ा सा माशाल्लाह पेशावरी पठान बैठ गया आपके साथ। अब आप थोड़ा हेलो हाय करके जिंदगी गुजारोगे ना, आपने लड़ाई कर ली उससे, तो वो सफर आपका तमीज से गुजर जाएगा। पट्टा कर लिया, गाली दे दी, ओ गरिबान और गुत्तम गुत्ता, या तो आप बोलोगे सीट मेरी तब्दील कर दो। वहीं बैठे रहोगे तो उसको भी, वो भी डिप्रेशन में जाएगा, वो तो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। आपने पट्टा ऐसे आदमी से ले लिया, आप खुद डिप्रेशन में चले जाओगे। उसका तो अखपल वतन है वो, आप तो सफर में जा रहे हो, आप आ जाओगे डिप्रेशन में। तो आपको चाहिए कि आपकी जरूरत है, जिसके साथ भी आप दुनिया में सफर करते हो, आप चाहते हो कि मोहब्बत नहीं कर सकते तो कम से कम फड्डा ना करें। पड़ोसियों से लोग बना के रखते हैं, मैं भाई मोहल्लेदारी कहते हैं ना, भाई मोहल्ले में रहना है ना, भर एक से फड्डा क्यों करें भाई, मैं रहना तो इसी मोहल्ले में। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप अपने सीने से दिल देख निकाल के उसको पकड़ा दो।
कि यार तू चूंकि बहुत अच्छा पड़ोसी है या तू मेरा सफर में बहुत अच्छा साथी है, अब आपने उससे इश्क की हद तक मोहब्बत करना शुरू कर दी, सारे राज उसको दे दिए और बस उसी को राजी करने में पूरा सफर आपने गुजार दिया, फोन नंबर दे दिया और मोहब्बत हो गई। अब जब जनाब स्टेशन पे उतर के वो जा रहा है या अड्डे पे उतर के वो अपने घर जा रहा है, आप फूट फूट के रो रहे हैं, यार कहाँ जा रहा है यार? वो कह रहा है भाई मैं अपने घर जा रहा हूँ। आपका यार मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। कह गए तुम्हारा हेडेक है भाई, तुम्हें मोहब्बत करने से पहले कम से कम 20 दफा सोचना चाहिए था कि तुम्हारा स्टेशन अलग, मेरा स्टेशन अलग, तुम कराची के हो मैं पेशावर का हूँ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, या तुम मुल्तान के हो मैं लाहौर का हूँ, कहीं का भी हूँ। तो भाई इतनी मोहब्बत करो टाइम पास करने के लिए, दिन रात एक कर दिए मुझे मनाने में, मुझे राजी करने में, तो बस दुश्मनी ना बोलते। यही लोग भी यही कहेंगे ना। आप लाहौर जा रहे हैं, जब मुल्तान पे गाड़ी रुकी तो जो मुल्तान पे मुसाफिर उतर रहे हैं उनसे फूट फूट के रो रहे हैं। आप क्यों रो रहे हैं भाई? यार ये तो हमारे डब्बे में मेरे साथ थे, मुझे तो इनसे मोहब्बत हो गई है यार, इतने अच्छे लोग। भाई जितने भी अच्छे थे, तो आपको जब पता था कि आपने लाहौर उतरना है और इसने मुल्तान उतरना है, तो इतनी मोहब्बत करने की क्या जरूरत थी यार? आप तो ये टेंशन आपकी अपनी बनाई हुई है। उस वक्त आपको यार दिल तो इंसान के बस में नहीं होता, तो लोग कहेंगे होता है। ये सिर्फ डायलॉग होते हैं ड्रामों के कि दिल इंसान के बस में नहीं है। ड्रामों में बहुत अच्छा होता है ये, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी कोई हकीकत नहीं है। फिर आपको ठीक है, फिर जो हीरोइन थी को हीरोइन से मोहब्बत हो गई, चरसी को चर्च से हो गई, तो बहुत अच्छा है, वो भी कह सकता है दिल मेरे इख्तियार में नहीं है, तो उसको क्यों बुरा भला कहते हो? तो दिल इंसान के इख्तियार में है, जहां चाहे मोहब्बत करे। हाँ ये जरूर है कि अगर मोहब्बत इख्तियार में नहीं है तो मोहब्बत के असबाब बहरहाल इख्तियार में होते हैं, कि इंसान जिस चीज के बारे में बार बार सोचता है उसकी मोहब्बत दिल में आती है, जिसकी बुराई सुनता है बार बार उसकी नफरत दिल में आती है। तो जो मोहब्बत अगरचे गैर इख्तियारी चीज है, लेकिन मोहब्बत पैदा करने के जो असबाब और वसाइल हैं वो अपने इख्तियार में होते हैं इंसान के। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अब सुने, ये समझे इस बात को कि जब आपको पता था इसका स्टेशन अलग, मेरा स्टेशन अलग, ही अलग जाएगा, मैं अलग जाऊंगा, तो आपको इतनी मोहब्बत करनी चाहिए जितनी अफोर्ड कर सकें आप। तो याद रखो, दौलत, इज्जत, सेहत, शोहरत, ये तमाम की तमाम चीजें क्या हमेशा हमारे साथ रहती हैं? बोलो ना भाई। बहरिया टाउन क्या हमेशा रहता है? आज तक किसी के साथ रहा है? क्या बहरिया टाउन के ओनर का जनाजा नहीं उठेगा? क्या जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बिल्डिंग बनाने वाले, वो मरते नहीं है क्या? जब वो मरते हैं तो जिनको उन्होंने बेची है वो क्यों नहीं मरेंगे? वो कैसे जिंदा रहेंगे भाई? पता नहीं कैसे कैसे दुनिया में बादशाह आए हैं, वो नहीं रहे भाई इस दुनिया में। तो ये तो, और पहले तो उम्रें भी लंबी होती थी, अब तो हो गए 50-50, 60-60 साल के तो बंदे हैं अब, और उसमें भी इंजॉय करने की जो उम्र है वो 50, बहुत ज्यादा 55, उसके बाद डायलिसिस। चूंकि इंजॉय इतना ज्यादा कर लिया होता है कि अब जो है ना वो शुगर हो जाती है, इतना मीठा खा लिया होता है। डॉक्टर कहते हैं मीठा खाने से शुगर नहीं होती, मीठा खाने से नहीं होती, लेकिन मीठा खाने से वेट तो बढ़ता है ना। तो वेट बढ़ने से बहरहाल शुगर, तो चलो इस तरह नहीं होती तो उस तरह हो जाती है, बहरहाल वेट बढ़ने से शुगर हो जाती है, टेंशन से शुगर हो जाती है। तो इतना लाइफ को एंजॉय कर लिया होता है कि वो तो अब तो जल्दी चले जाते हैं लोग, और जो जिंदगी भी है वो भी ऐसी बेचारों की कसम फुर्सी में गुजरती है। तो इसलिए इस्लाम ने हमें कहा कि भाई आप इन चीजों से इतना दिल लगाएं, एक तो जितना इनके साथ रहना है, दूसरा जितना दिल लगाना अफोर्ड कर सकें आप, ठीक है ना। तो इसलिए उलमा ने एक अलामत बयान की है कि दिल में दुनिया की इतनी मोहब्बत तो किसी हद तक जरूरी है जो दुनिया कमाने में मदद दे। बिल्कुल ही अगर खत्म हो गई तो फिर इंसान मुआशरे से कट जाता है। बाज होते हैं सुस्त, शौक ही नहीं है तो ना वो दुकान पे बैठते हैं, जब दुकान पे नहीं बैठ रहे तो बेरोजगार होते हैं, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं करते। थोड़ी सी तो एक मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ हरकत होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा हरकत ना हो कि जितनी मोहब्बत की अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है। तो वो अलामत ये है कि दुनिया छिनने पे गम कितना होता है, समझ रहे? दुनिया मिलने की खुशी होनी चाहिए, इतनी मोहब्बत हो, छिन जाने का गम नहीं होना चाहिए। हो गया तो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं फ्री कराओ दुनिया को। छिन गई तो छिन गई, कितने गाड़ी छिन गई। हमारे एक दोस्त हैं 20 लाख या पता नहीं 40 लाख की गाड़ी खरीदी। वो तकाफुल के बारे में बड़े बड़े उलमा का फतवा है कि जायज है, बाज उलमा को इत्मीनान नहीं है इसके जायज होने पर, तो हमें भी कुछ इत्मीनान नहीं है जवाज पर। तो मुझसे उन्होंने मसला पूछा, भाई तकाफुल करवा लूं? मैंने कहा यार हमें तो जवाज पर इत्मीनान नहीं है। बाज उलमा, बड़े उलमा जायज कह रहे हैं, अगर आप उनकी राय पर अमल करें तो आपकी मर्जी। वो बड़े दीनदार थे, उन्होंने कहा यार मैं हमेशा बयान आपके सुनता हूँ, मसाइल आपसे पूछता हूँ, तो मैं इसमें भी आपकी राय को फॉलो करूंगा, मैं नहीं करवाऊंगा तकाफुल। 20 लाख की गाड़ी छिन गई, वो बेचारे उन्होंने नए नई शोरूम से निकलवाई भी थी।
तो मुझे ख्याल हुआ कि अब ये मेरा बयान के अलावा सबके बयान पाबंदी से सुनेंगे। जंगे मरवा दिया मौलवी साहब ने। तो हम आंख बचाते फिर रहे थे, कहीं नजर आए तो उधर रास्ता बदल लिया हमने। लेकिन दीनदार देखो, ना तो उनकी पेशानी पे कोई सलवट आई, कोई लकीर नहीं, हंस के मिले, मुस्कुरा के मिले, कह रहे यार छिन गई। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं भाई। कह रहे बस हमने तो शरीयत पर अमल की वजह से नहीं करवाया, जो उनकी जो राय थी, तो बस अब छिन गई तो छिन गई। सब्र किया उन्होंने, तो कोई परेशानी नहीं। भैया बस कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, ये दीन की बरकत है। मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं ना, ऐसे भी लोग आते हैं जिनके 50 रुपए निकल जाए तो टेंशन में, डिप्रेशन के मरीज, और ऐसे भी है 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए उनके ज़्यादा हो गए, और कोई बहुत बड़े ताजिर भी नहीं है, लेकिन टेंशन नहीं लेते यार। बस खाने को मिल रहा है ना, रोटी मिल रही है, सोने की जगह है, बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही है, कोई मसला नहीं, अल्लाह और दे देगा, टेंशन नहीं लेते वो। तो आप मुझे बताओ, एक आदमी जो टेंशन ले रहा है वो करोड़ों रुपए कमा के भी, क्या उससे बेहतर हो सकता है जो गरीब होके टेंशन नहीं? असल तो चीज टेंशन है ना भाई। पैसा क्यों कमाता है? खुशी के लिए कमाता है। तो जब वो पैसा नहीं होके खुश हो रहा है तो उस पैसे का क्या करना, जिस पैसे में खुशी नहीं है, खुशी नहीं है तो उस पैसे का करना क्या है? तो वो उनकी गाड़ी छिन गई। अल्लाह की कुदरत के 1.5-2 साल के बाद पुलिस वालों ने इनको फोन किया, आपकी गाड़ी पकड़ी गई है, आ जाओ। वो मिल गई दोबारा। तो हाँ, वो तो मायूस हो चुके थे। मैंने कहा देखो, आपने इंश्योरेंस करवाई होती तो पैसे लेके आप भी बेफिक्र हो जाते, और जब आप बेफिक्र होते तो पुलिस वाले तो माशाल्लाह, वो तो आपको पता है, वो तो बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं मुख्तलिफ चीजों की। पुलिस वाले भी बयान सुनते हैं भाई। तो खैर जो है, तो अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है कि टेंशन सिर्फ एक चीज की लेनी है आपने, आखिरत की। मेरा आखिरत में बनेगा क्या, बस। और ये टेंशन जब आप लोगे तो इसका नकद फायदा ये होगा, अल्लाह ताला, हदीस में आता है, जअलल्लाहु शमलहु, वो क्या है, जमालहु शमलहु, तमाम फिक्रों को अल्लाह बंद कर देगा, आपकी खत्म कर देगा। वह अततहु दुनिया वही रागिमा, और दुनिया नाक रगड़ते हुए आएगी। दुनिया आपके पीछे भागेगी, आप दुनिया के पीछे नहीं भागोगे। ये फायदा होगा दुनिया में, काम भी बनेंगे, सब कुछ होगा, किसी से पीछे नहीं रहोगे इंशाल्लाह। और सुकून है एक अलग, वो सुकून जिसके लिए लोग दुनिया मारी मारी फिरती है। तो भाई दुनिया से मोहब्बत इंसान के सुकून को तबाह कर देती है। दुनिया से मोहब्बत करने की चीज नहीं है। मैं जल्दी से वाकया सुना के फौरन टॉपिक पर आता हूं। तो मैं बता रहा था, हमारे हजरत से जब हम ये सुना करते थे ना, बार बार मैं कहता था, किस अल्लाह वाले की अलामत ये होती है कि उसके पास बैठकर दुनिया की मोहब्बत कम हो जाए। तो हजरत के पास पैसा बहुत था, लेकिन वहां बैठ के पैसे वैसे की चाहत खत्म हो जाती। हालांकि हजरत की गाड़ी ऐसी थी, कुवैत के शहजादे से खरीदी थी। ऐसी गाड़ी मैंने अब तक नहीं देखी है यहाँ। लेकिन ये कि मोहब्बत नहीं थी। वो नुकसान एक दफा बहुत करोड़ों रुपए का हजरत का नुकसान हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, आराम से रात को सोए। आपको पता है सदर जिया के दौर में अलायंस वाले आए थे और उनकी मुजारबत का काम शुरू किया था, तो लोगों के करोड़ों रुपए लेके गायब हो गए थे वो। तो उसपे जिन लोगों का नुकसान हुआ ना, कईयों को हार्ट अटैक हुआ, कई ब्रेन हेमरेज से मर गए। तो हमारे हजरत का भी बहुत बड़ा पैसा उसमें डूब गया था। तो हजरत को तो कुछ भी नहीं, हजरत ने ऐसे हाथ झाड़ा, चलो वैसे भी मुसाफिर खाना है, मरना तो है, खाने को तो मिल रहा है ना बस। तो जो